So the first question is, for a non-zero rational number x, 1 minute. For a non-zero rational number x, x raised to power 8 divided by x raised to power 2 is equal to dash. Some students have written x raised to power 4 also. That is wrong. ठीक है, 8 को 2 से डिवाइड कर दिया और 4 किसने किया? 6 आंसर है ना, किसी ने किया 4? इसी ने किया जिसकी शीट मेरे पास है, अकुल. See, such an intelligent child and doing such a blunder. अकुल, अब तेरी शीट में हाथ में आया तो तुझसे पूछूंगी ना. So same base division sign, so it will be x raised to power 8 minus 2. The answer is x raised to power 6. Right? So please do these questions carefully. Next, the standard form of the number 1, 2, 3, 4, 5. Now this was the number and we have to write the standard form. We know the standard form is the decimal after the first non-zero number. Yes. Here we can see the decimal is here. No, we cannot see the decimal. It means the decimal is at the last. So we are going to shift the decimal on the left hand side. Yes. 1.2345 into 10 to power 1, 2, 3, 4. Left को shift किया, कितने digits? 4. So this is the standard form. Fine. Next beta, which power of 8? ध्यान से सुनो क्वेश्चन. 1 minute. अरे उनके पास क्वेश्चन नहीं है, ऑनलाइन वालों के पास. रुक जाओ, एक बार में सुनने में समझ नहीं आता. Which power of 8? Okay, you raise your hand, online students. Which आपसे तो हो ही नहीं रही बात ना बेटा, मैं ऑनलाइन वालों से पूछ रही हूँ. Which power of 8 is equal to 2 raised to power 6? Fine, solve it and raise your hand. बताएंगे वो. Yes. Now see here. Which power of 8 is equal to 2 raised to power 6? इसका मतलब जो भी 8 की पावर का आंसर होगा वो 2 raised to power 6 का आंसर होगा. अब 2 raised to power 6 कितना होता है? 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 2 to the 32, 2 to the 64. 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है. तो 8 की क्या पावर होगी कि 64 आए? 8 into 8, that is 8. 8 square is 64 and 2 raised to power 6 is 64. So which power of 8 is equal to 2 raised to power 6? Power should be 2. So the correct answer here is 2. Many students have done it wrong. बहुत बच्चों ने गला आप में से. ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ 7 शीट चेक की है. किसका सही है? 5. एक ये गलत है और एक जिया का गलत है. ठीक है, तो आंसर इज 2. नेक्स्ट इज अ सॉलिड दैट हैज ओनली 1 वर्टेक्स. ऐसे कुछ भी आ सकता है आपके पास. वी हैव डन दी vertices, faces, edges of different 3D figure. So a solid which is having 6 faces, options given. A solid which is having 1 vertex, options are given. 1 edge. So you should know that which 3D figure is having how many faces, how many edges and how many vertices. Then only you will be able to do that MCQ. Fine beta. Next is a square has dash line of symmetry. So this also I discussed yesterday. A square has 4 line of symmetry. ठीक है, तो ऐसे कुछ भी आ सकता है. जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, a parallelogram has dash line of symmetry. तो आपको वो करवाया था कि एक पैरेललोग्राम है,
पैरेललोग्राम की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? 0। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रोटेशन, यस, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 2 एंड एंगल इज 180। जब आप इसको पूरा ऐसे 180 पे रोटेट करोगे पैरेललोग्राम आपको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। बट इट डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आपके बुक के जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसा फिगर जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है लेकिन ऑर्डर है, लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है, ऑर्डर इतना है, लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है, ऑर्डर 1 से ज्यादा है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सारे आपको आने चाहिए, दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, फाइन। नेक्स्ट इज PQRS is a kite. Now we know what is a kite. A kite is that figure in which the adjacent sides are equal. This is a kite. PQRS is a kite in which PQ is equal to PS. PQRS. PQ किसके इक्वल है? PS के, and QS किसके? QR is equal to SR. It is symmetric about. सिमेट्रिक, ये जो काइट है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? ये वाली। The options were diagonal PR, diagonal QS, intersecting point of diagonals and none. तो बेटा आप में से कईयों ने टिक किया इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। अरे डायगोनल तो ये हुए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका आपसे क्या पूछा? इट इज सिमेट्रिक। तो क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स के अराउंड ये सिमेट्रिक है? सिमेट्री मतलब ये दो इक्वल हाफ्स में कौन सी लाइन से डिवाइड होंगे, और उसका आंसर है डायगोनल PR। दिस काइट विल बी सिमेट्रिक अराउंड about the diagonal PR। Is it clear? I hope it is clear. Next बच्चे, same which I discussed, a parallelogram has dash line of symmetry. So a parallelogram has no line of symmetry. Apple, you do one thing. Arish, you do. Next. If a polyhedron has 8 vertices, 12 edges, what is the number of faces? So vertices are given to us 8, edges are given to us 12, and faces were asked. Very easy. It is very easy. Euler formula लगाएंगे. In the Euler formula we have FV. F plus V is equal to E plus 2. So FVE में से अगर दो चीजें गिवन है तो हम थर्ड चीज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें गिवन थे वर्टिसेस 8, एजेस कितने हैं? 12। सो 14 minus 8, so the answer is 6। ये सबका ठीक है, इसका गलत है? चलो अगर गलत है तो गलती से तुम्हारा गलत हुआ, अदरवाइज इट इज करेक्ट फॉर ऑल। नेक्स्ट, which of the following rational number is equal to its reciprocal? इसका आंसर बेटा 1 भी है और -1 भी है। 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल -1। तो अब डिपेंड करता है ऑप्शन में, ऑप्शन में सिर्फ 1 ऑप्शन था, -1 नहीं था, तो हम 1 को ही टिक करेंगे, ठीक है ना। सो अ नंबर विच इज रेसिप्रोकल टू इटसेल्फ इज 1 एंड -1 बोथ। तो यहाँ ऑप्शन में 1, 2, हाफ और नन था, तो हमने 1 को टिक कर दिया। How many rational numbers are there between two rational numbers? Obviously, I have told you many times, unlimited, infinite, कुछ भी लिख सकते हो। Next, the solution of the equation, ये अभी कल ही डिस्कस किए थे ना, ऐसे MCQs आ सकते हैं। आपके पास इक्वेशन है 3x plus 7 is equal to -20. So the solution of this equation is 3x is equal to, look here on the board, I will solve this equation for you. -20, 7 will go on the right hand side, it will become -7. What you people do sometimes, when you are solving the equation, like on the right hand side we are having -20, लिखते लिखते आप माइनस खा ही जाते हो। You do 20 minus 17 and that is wrong, ठीक है।
तो आपने बेटा अगर किसी नंबर को आप शिफ्ट नहीं कर रहे हो, वो उसी अपनी साइड पे ही है, तो उसके आगे अगर नेगेटिव साइन है वो ध्यान में रखना है, वो इट विल नॉट गेट वैनिश, वो उसके साथ ही रहेगा, ठीक है। So 3x is equal to, both are negative, added up, it will become minus 27. X is equal to minus 27 by 3. Answer is minus 9. अब 9 को भी टिक किया हुआ है, किसने किया 9 को टिक? सबका आंसर सही है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ आई एम गोइंग, वेट वेट बेटा वेट, एक मिनट, I am writing the question on the board, solve it. If k plus 7 is equal to 16, टेबल पे देखो, एक मिनट रुक जाओ, एक सेकेंड। If k plus 7 is equal to 16, then find the value of 8k minus 72. एक मिनट भी करने दो बच्चों को। So from here we have found the value of k, which is equal to 9, and then we will substitute this value of k here. It will be 8 into 9 minus 72. 72 minus 72, answer is 0. ठीक है। Then बेटे, next question, listen to me. In a right angle triangle, the angles other than the right angle are acute. हाँ, लेकिन गलत है, आप लोग सोचते ही नहीं हो। क्वेश्चन क्या है, कहते हैं इफ अ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन वी नो वन, लिसन टू मी, वन एंगल इज 90। किसका गलत है? हाँ, आप लोगों में से भी गलत है बेटा, कितनों का गलत है? रेज योर हैंड। सही है, तो रेज योर हैंड, 1 2, ठीक है आंसर आपका, आपका इसका गलत है ये। So the question is, in a right angle triangle we know one angle is right angle, ठीक है। तो बाकी के जो एंगल है वो क्या होंगे? एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट या नन? बाकी के एंगल्स भी राइट हो गए अपन। और बेटा ऑब्ट्यूज भी किसी ने टिक किया हुआ, किसने किया? ऑब्ट्यूज का मतलब पता है? मोर देन 90। अगर ये अगर एक भी एंगल मोर देन 90 हो गया तो 90 प्लस 90 या कुछ भी 90 से अबव, तो the sum of the three angles will be more than 180. We know that in a triangle the sum of angles should be 180 degree. अगर ये 90 है तो ये दोनों एंगल्स 90 से क्या होंगे? कम। So if in a right angle कम होंगे तभी 180 बनेगा ना। अगर आप एक और एंगल 90 भी ले लेते हो तब भी 90 प्लस 90 180, तो तीसरा एंगल कहाँ जाएगा? It will not be a triangle then, right? So बेटा, this is in a right angle triangle, if one angle is 90, the other two angles are obviously acute. हर चीज डिस्कस की हो ये जरूरी नहीं होता, कुछ आपकी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है कि हाँ जी ये अंडरस्टूड है। फाइन। नेक्स्ट, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60, इसके लिए तो ना मैं मारूंगी अकुल। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60, then the triangle is, अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल 60 हैं, ये 60 तो ये 60, आपने टिक किया है या किसी बच्चे, इसमें ऑप्शन था आइसोसेलेस बट नॉट इक्विलेटरल। आप पहले देखो कि ये 60 ये 60, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई हमने, देखा तो ये एंगल भी कितना आ गया 60। If in a triangle it's okay, but you be careful next time in exam you have to question को 2 times पढ़ा करो। If in a triangle two angles are 60, then obviously the third angle will be 60. So all the three angles are equal, so therefore they make an equilateral triangle. समझ आ गई? अगर लिखा होता if in a triangle two angles are 80 degree, then the triangle will be, अगर दो एंगल्स 80 हैं तो ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेलेस, बिकॉज इफ टू एंगल्स आर 80 डिग्री, ये मान लो 80 है, कोई भी दोनों में से ले लो, 80 ये ले लो 80,
1 तो ये कितना होगा 20, मतलब बनेगा, शेप डिफरेंट होगी, ये छोटा होगा, ठीक है, ये वाली साइड 20 बनेगा। तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट ये साइड, इसके ऑपोजिट ये साइड, ये वाली साइड्स क्या होंगी इक्वल। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब उनकी ऑपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, देयरबाय टू साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल एंड देयरबाय द ट्रायंगल विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड इफ द टू एंगल 60 तो तीसरा भी 60 आ गया अगर, तो वो क्या होगा इक्विलेटरल। फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रेंज। नंबर्स गिवन थे, रेंज यू नो, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, दैट इज द रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल पुट दिस एमसीक्यू इन द ग्रुप आल्सो, ठीक है, मैं डाल दूंगी आज, आप प्रैक्टिस कर लेना। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज ऑलवेज इक्वल टू, आपको बोला था एक इवेंट में कितनी भी प्रोबेबिलिटीज हो उनका सबका सम आप क्या होता है 1। नेक्स्ट सुनो, अ कॉमन डाइस हैज डैश फेसेस, डाइस लूडो वाला जो डाइस होता है कितने फेसेस, दैट इज अ क्यूब, उसके कितने फेसेस होते हैं 6। इसी तरह से आपको कोई सिलेंडर के एग्जांपल, अ वाटर बॉटल हैज हाउ मेनी फेसेस, water bottle has how many faces, 2 a cylinder has how many faces, आपके हाथ में है वाटर बॉटल नव्या, 1 2 और ये जो ये 3, समझ आ गई। So similarly any shape example can be given to you, a birthday cap has how many faces, birthday cap 2, एक जिसको हम ऊपर से टच कर सकते हैं, जिसको हम अंदर से टच कर सकते हैं। बर्थडे कैप इज अ कोन, तो कोन के फेसेस एजेस वर्टिसेस पता होंगे तभी बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 7x स्क्वायर बाय 7x square y is a dash polynomial, cubic, quadratic, linear। पॉलिनोमियल लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर क्या हो 1, क्वाड्रेटिक मींस जिसकी पावर क्या हो 2, और क्वाड्रेटिक क्यूबिक मतलब जिसकी पावर क्या हो 3। उसके बाद होता है बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर हो 4। वो तो बात की बात है, अभी लीनियर मींस 1 करवा रखा है, डिस्कस किया कभी, तो कुछ जनरल भी आता है, ठीक है। लीनियर मींस पावर 1, क्वाड्रेटिक मींस पावर 2, क्यूबिक मींस पावर 3, डिग्री 3 कल डिग्री करवाई थी, ये इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिफरेंट वेरिएबल, इसका मतलब डिग्री क्या है 3, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर मींस डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2, गलत किया मैंने, अच्छा कोई नहीं, एंड क्यूबिक मींस डिग्री 3, ठीक है। नेक्स्ट वाज सो इजी, p स्क्वायर माइनस 2b माइनस 100 गिवन है, p की वैल्यू है -10, आपने आंसर बताना है, ये इजी है, ये कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x स्क्वायर y टू गेट -7x स्क्वायर y, ये भी कल आपसे डिस्कस किया था कि किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, व्हाट मस्ट बी एडेड, वाज इट डिफिकल्ट, no, but you haven't got 20 out of 20। से बेटा उस पे लगता है ये नहीं, द फिगर्स विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जिसमें कर्व नहीं होता उस पे लगता है यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। पॉलीगन जिसमें लाइन सेगमेंट होते हैं, जो कर्व वाला होता है ना, जैसे स्फीयर पे नहीं लगता, और अगर किसी कर्व वाली शेप पे लग जाए, वेरीफाई हो जाए तो वो बाय चांस है, अदरवाइज जो यूलर्स फॉर्मूला है दैट इज वैलिड फॉर द पॉलीहेड मींस द 3D फिगर व्हिच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, कर्व वाले पे नहीं होता, ठीक है जी, कोई बात नहीं, बोनस। All right students, next that MCQ which you got online, that we will discuss in our next class, right beta? So now that's all for today, take care.